My heart is open मेरा हृदय खुला है to the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के काम के लिए, And this is my desire. और ये मेरी इच्छा है कि whatever you will hear today, कि आज जो कुछ आप सुनने वाले you हो will not forget. आप उसे भूलोगे And नहीं, you will live on the word of God. और आप उस वचन पे जीने The वाले word हो। of God is our strength. परमेश्वर का वचन हमारी ताकत And है। when you understand the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं, it makes you overcomer. वो आपको विजयी बनाता So है। any area you are struggling in your life, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप संघर्ष कर रहे हो, if you believe in the word of God today, अगर आप प्रभु के वचन पे विश्वास you करोगे, will come with testimony. आप एक गवाही के साथ You आओगे। will come with testimony. आप गवाही के साथ आओगे। It might be personal वो आपके हृदय के लिए पर्सनल or होगा something relational या किसी और के लिए होगा, or something in your family या फिर आपके जो परिवार में हो or रहा होगा, something about your future. या आपके फ्यूचर के रिलेटेड होगा। But I believe पर मैं विश्वास करता the हूँ word of God is able to change every single thing. कि परमेश्वर का वचन हर एक चीज को बदलने की ताकत I रखता है। feel the anointing. मैं प्रभु के अभिषेक को महसूस कर सकता हूँ। Whenever I speak about the word of God, मैं जब कभी परमेश्वर के I वचन के लिए just बात feel the करता हूँ, fire. मैं परमेश्वर की आग को महसूस I करता हूँ। believe मैं विश्वास करता हूँ tonight, आज, before you go out of this room, इससे पहले कि आप इस जगह से बाहर you will जाए, receive the fire. आप परमेश्वर के आग को You will रिसीव have करने fresh वाले हो। fire. Do you believe you will have fresh fire? आप विश्वास करते हो कि एक फ्रेश आग आपके जीवन पर आने वाली You will है। see the passion for the Lord and for His kingdom will ignite. आप देखोगे परमेश्वर के लिए जो आग है आपके हृदय में उत्पन्न होगी। So as we begin to go ahead, अभी हम वचन में जा रहे हैं, let's just pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, पिता, हम यीशु मसीह के नाम से Father, प्रार्थना me, करते हैं। myself, and Asmita, we surrender to you, Lord. मैं और अस्मिता को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Holy Spirit, we depend on you. पवित्र आत्मा, हम तुझ पर निर्भर होते हैं। And Jesus, we ask, यीशु मसीह, हम मांगते हैं let your will be done. कि तेरी इच्छा पूरी हो, Let everyone receive fire. कि हर एक हृदय तेरे आग को ग्रहण करने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's just open John chapter 3, verse 14 and 15. आइए यूहन्ना 3:14 का 15 हम पढ़ते हैं। Read this carefully. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, even so must the Son of Man be lifted up. उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। Next verse. अगला वचन, That whosoever believes in him ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे should not perish, वो नाश ना हो but have eternal life. पर वो अनंत जीवन पाए। Amen. आमीन। Let's go to the 14 again. It says, and as Moses lifted up serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाना चाहिए। What he's saying? वो क्या कह रहे हैं? As Moses lifted up serpent, जैसे मूसा ने सांप को ऊपर उठाया, so as Son of Man will be lifted up. वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा। Jesus is talking two things. यीशु मसीह दो बातें कर रहे हैं यहाँ He पे। is comparing himself with what Moses did, the serpent. He lifted up the serpent. यीशु मसीह अपनी तुलना मूसा के साथ कर रहे हैं, उस सांप के साथ कर रहे हैं जो ऊंचा उठाया गया। This is something very beautiful. ये काफी सुंदर बात है। If you understand this truth, अगर आप ये बात को समझ पाओगे, when you understand this truth, जब आप ये सच्चाई को समझ पाओगे, you will receive freedom at the moment. आप तभी ही आजादी को पाने पाओगे। As soon as you receive this revelation, जब आप ये प्रगटीकरण को रिसीव करोगे this हृदय में, revelation has power, ability to heal you right at the moment. ये प्रगटीकरण में इतनी ताकत है कि वो अभी आपको चंगाई दे See, सकती है। Jesus on the cross, he made spectacle of the enemy, public spectacle of the enemy. यीशु मसीह ने क्रूस पर पब्लिकली ये दिखाया कि शत्रु कौन है और कैसा है। We know Jesus overcame. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने विजय को पाया। Jesus gave his life for us. यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। And when he gave his life for us, जब यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए Bible दिया, says ये बाइबल बताती he है, went into the Hades बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नीचे गया नर्क में, and he set captive free. और उन्होंने बंधन में जो थे उनको बंधुआई से बाहर He निकाला। preached the good news in the Hades. उन्होंने यीशु मसीह ने सुसमाचार नर्क में सुनाया And he set people free.
और उन्होंने जो लोग बंधन में थे उन्हें बंधुआई से बाहर निकाला And he took the keys from the devil to himself. और यीशु मसीह ने शैतान से कुंजिया जो नर की थी वो वापस ले ली। Right? Any Right. doubt? कोई डाउट? So now the keys are with Jesus. अभी जो कुंजिया है वो यीशु मसीह के पास है। So what Jesus is saying, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? as Moses lifted up the serpent, जैसे मूसा ने उस सांप को ऊंचा उठाया, so the Son of Man be lifted up. वैसे ही मनुष्य का भी पुत्र ऊपर उठाया जाएगा। So why he is comparing? यीशु मसीह क्यों ये तुलना कर रहे हैं? Let's go to the what happened with Moses. Let's open Numbers chapter 21 verse 4. आइए हम गिनती 21:4 से 7 को पढ़े। It says, as they journey from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. फिर उन्होंने हार पकड़ा और कुछ होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। Can you somebody read verse 5? क्या कोई पांचवा 5 to वचन पढ़ 7? सकता है? 5 से 7। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? Wait. So they were in the journey and they said, why you have brought us here to die? इस्राएल Moses. के जो लोग थे वो चल रहे थे और वो मूसा से कंप्लेन कर रहे थे कि हमें यहाँ पर क्यों लाया। What is saying? वो क्या कह रहे हैं? मरने के लिए क्यों लाया? See, they were already in the slavery. वो पहले ही बंधुआई में थे, Every day they were dying. वो हर रोज मर रहे थे वहां But पे। when Moses brought them out, जब मूसा ने उन्हें बाहर निकाला and they are now complaining. और अभी वो कंप्लेन कर रहे, कुड़कुड़ा रहे In the हैं, journey they are complaining. वो रास्ते में कुड़कुड़ा They रहे were हैं, not enjoying the freedom. वो प्रभु के आजादी को एंजॉय नहीं कर रहे In थे। that journey, वो रास्ते में there was no slavery, वहां पर कोई बंधुआई नहीं थी, no work, वहां पे कोई काम नहीं no था, struggles. वहां पे कोई भी Every स्ट्रगल day नहीं था। food will arrive from heaven. हर रोज परमेश्वर की ओर से खाना आता था। They are not seeing what God is doing, वो ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर क्या कर रहा but है, what they are complaining to Moses. वो कुड़कुड़ा रहे थे मोसेस के साथ। See, many of times it happens with us. ये हमारे साथ भी होता We है, forget what Lord is doing, हम भूल जाते हैं कि प्रभु क्या कर and रहा we है, complain about the things which is not happening. और हम कुड़कुड़ाते हैं उन बातों के लिए We जो हो नहीं complain रही about है। things which we should not complain. हम कुड़कुड़ाते हैं उन बातों के लिए जो हो नहीं रही है। Ahead. यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। See what they, ओ प्रभु जो स्वर्ग से भेज रहा है उसको क्या बोल रहे? निकम्मी रोटी. Can you believe? Can you believe? They prayed, give us meat, and when food came, and now they are saying निकम्मी रोटी. इज़राइल के लोगों को परमेश्वर मीट दे रहा था, तभी भी वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, वो खुश नहीं हो रहे थे कि परमेश्वर ने ये दिया है। Next. सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा और तेरे विरोध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। Let's open verse 7. आइए 7वां वचन खोले। Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के ओर तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। See, if you read throughout the book of Exodus, अगर आप निर्गमन की पूरी पुस्तक पढ़े, every time plague came, जब कभी भी विपत्ति आई, Moses prayed तभी मूसा ने प्रार्थना and किया it stopped. और तभी विपत्ति रुक गई। And here, और यहाँ पर when Moses prayed, जब मूसा ने प्रार्थना की, God asked him to make serpent. प्रभु ने मूसा से कहा कि तू एक सांप को बना। But here serpent came and Moses prayed, and serpent did not stop.
यहाँ पर ऐसे हुआ कि सांप आया, मूसा ने प्रार्थना की लेकिन सांप रुके नहीं। It says, verse 8, 8वां वचन कहता है, throughout the book of Exodus, plague came, he prayed, plague stopped. निर्गमन की पुस्तक में विपत्ति आई, मूसा ने प्रार्थना की और विपत्ति चले गई। And when these people were complaining, और जब ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे serpents came. तब सांप आए। And then he prays to the Lord. मूसा ने फिर से प्रार्थना की। People come and say, pray unto the Lord that these snakes will go. People are dying. लोग आए, मूसा से कहे प्रार्थना कर मेरे लिए क्योंकि सांप आए हैं और काट रहे हैं। Verse 8 says, 8वां वचन कहता and the है, Lord said unto Moses, make you fiery serpent and set it upon pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looks upon it, shall live. यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित बचेगा। What God asked him to do? परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? Make a serpent एक सांप बना, and put it on the pole, एक खंबे पर लटका, that whoever is bitten by the serpent, कि जिस किसी को भी सांप ने डसा है they will look unto the serpent वो सांप को देखेंगे and they shall live. और वो जीवित So रहेंगे। what was the answer? तो उत्तर क्या था? To look unto the serpent. उत्तर था कि सांप को देखना, And that look word in Hebrew, और वो जो शब्द है देखना, it look intently, look like scan it. उस शब्द का मतलब होता है देखना, गहराई से देखना, ध्यान से देखना। So what God says to them? परमेश्वर क्या कहता है Look unto the serpent. कि उस सांप को देखिए। Are you all with me? आप मेरे साथ हो? Let's go verse 9. आइए 9वां वचन पढ़े। And Moses made a serpent of brass and put it upon pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए से जो जिसने उस पीतल को के सांप को देखा वह जीवित बच गया। So just understand. ये समझिए, Moses makes a serpent of brass. मूसा एक पीतल के खंबे का सांप बनाता है, And whoever looked unto that serpent, और जिस किसी ने भी उस खंबे को देखा they are healed. वो चंगाई प्राप्त So करते now हैं। question is, अब ये सवाल है why God asked him to make serpent? कि परमेश्वर ने मूसा को ये सांप बनाने के लिए क्यों कहा? Why not elephant? ऐसे क्यों नहीं कि एक एलिफेंट को बनाने बोला? Why not eagle? ऐसे क्यों परमेश्वर ने नहीं बोला ईगल को बना? Eagle can directly eat serpent. ईगल जो बर्ड होता है वो सांप को पूरी तरीके से खा Or लेता है। anyone knows mungus? मुंगूस पता है आपको? Mungus can eat the serpent. मुंगूस सांप को खा लेता है Even is poisonous. क्योंकि वो But पॉइजनस होता है। why God is asking him to make a serpent? पर परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तू सांप को बना? Second question, दूसरा सवाल, why he makes bronze serpent? और वो पीतल का खंबा क्यों बनाता है? Why he makes bronze serpent? पीतल का खंबा क्यों बनाता Why है? not gold? क्यों नहीं गोल्ड का? Why not diamond? डायमंड का खंबा क्यों नहीं बनाया? Why not silver? सिल्वर का खंबा क्यों नहीं Why बनाया? is asking him to why Moses makes bronze? परमेश्वर क्यों मूसा को कह रहा है कि पीतल का खंबा बना? First question, पहला सवाल, why snake? क्यों सांप? Second, दूसरा, why bronze? क्यों पीतल? The reason is in the Bible brass represent judgment. बाइबल में पीतल न्याय को दर्शाता है। And why God asked him to make serpent? और परमेश्वर ने क्यों कहा सांप बनाने Because के लिए? that serpent क्योंकि वो सांप, was representing all the serpents who were there in the ground. क्योंकि वो सांप जो था वो सारे सांपों को दर्शा रहा था उस वक्त। So what God asked him to do? तो परमेश्वर ने क्या कहा? Make one serpent, कि एक सांप को बना, and he makes of brass. और वो पीतल का बनाता है। So what he was saying, वो क्या कह रहे थे? that one serpent, वो एक सांप, the judgment will come upon that serpent. वो न्याय जो होगा वो उस सांप पे आएगा, And everyone who looks upon that, कि जो कोई उस सांप को देखेगा the judgment is come upon it. वो न्याय उस सांप पर आएगा। I will make it easy more. मैं आपके लिए आसान करता हूँ। It means whatever was troubling people of God, ये ऐसी बात है कि जो भी चीज प्रभु के लोगों को सता रही थी, what was troubling them? उनको क्या चीज सता रही थी? सांप। So what God did, तो परमेश्वर ने क्या कहा whatever was troubling them, कि जो कोई उनको परेशान कर he रहा था put it on the pole and judged it. उस चीज को लेके उस खंबे पर लटका दिया। And same thing was told about Jesus.
और सेम बात है वो जो यीशु मसीह के लिए कही गई। What he is saying? वो क्या कह रहे As हैं? Moses lifted. जैसे मूसा ने ऊपर Why उठाया, Moses lifted? मूसा ने क्यों उठाया? Because there were snake and serpent was troubling people. क्योंकि वहां पर सांप जो थे वो प्रभु के लोगों को परेशान And कर रहे that थे, brass represent the judgment. और वो पीतल न्याय को दर्शाता So है। what happened in the time of Moses? तो मूसा के वक्त क्या हुआ? Whatever was troubling people, जो भी चीज लोगों को परेशान कर God रही थी, judged it on the pole. प्रभु ने उसे पीतल के खंभे पे न्याय किया उस चीज का। And same thing happened with Jesus. और सेम बात यीशु मसीह के साथ He हुई। said, as Moses lifted up the serpent, यीशु मसीह ने कहा जैसे मूसा ने उसको खंभे पर Son उठाया, of Man will be lifted up. मनुष्य का पुत्र भी वैसे ही उठाया जाएगा। क्यों? So that whatever was troubling us ताकि जो कोई हमें परेशान कर रहा था shall be judged on him. वो यीशु मसीह पर उस चीज का न्याय हुआ। You are getting it? क्या आप समझ रहे हो? Let's open Numbers 21:6. आइए गिनती 21 का 6 पढ़ते हैं। It says, the Lord sent fiery serpent among the people, and they bite the people, and much people of Israel died. सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। So there might be hundreds of snakes, ऐसे हो सकता है कि 100 सांप हो वहां and पे, only one snake was lifted up. और एक ही सांप था जो ऊंचे पे उठाया गया था। For 100 problems, वो जो 100 प्रॉब्लम्स थी वहां पे, there was one solution. एक ही उसका सोल्यूशन And था, whoever looked up to him, और जो कोई उस सांप को देखता they received healing. उन्होंने चंगाई को पाया, They were saved. वो बचाए गए। Same with our life. वो सेम चीज हमारे जीवन के लिए There है might be 1,000 problems. कि हजारों प्रॉब्लम हमारे जीवन में होगी। Many things we might be going through. हम काफी चीजों से संघर्ष कर रहे होंगे। People go through lakhs of problems. काफी सारे लोग कितने सारे कठिनाइयों के थ्रू But जाते there हैं, is only one answer. पर एक ही उत्तर है, Jesus. यीशु मसीह। Because every problem in the book of Exodus, like all the problem were judged on the one serpent. निर्गमन की पुस्तक में इतनी सारी जो विपत्तियां थी, उस विपत्तियों में से एक को लिया और क्रूस उस खंबे पर टांग दिया। Same with our life. वैसे ही हमारे जीवन में Everything what we go through जो भी हम जिस कठिनाइयों से जाते हैं, is judged on the cross. उस चीज का न्याय किया है क्रूस पर। Jesus paid it. यीशु मसीह ने उसका प्राइस पे किया। That's why he says, इसलिए वो कहता है as Moses lifted serpent, जैसे मूसा ने उस सांप को खंबे पर so लटकाया, the Son of Man will be. वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी So that लटकाया whoever जाएगा। will look up to him जो कोई भी यीशु मसीह को देखेगा shall be saved वो बचाया and जाएगा, will have eternal life. उससे अनंत जीवन You are मिलेगा। getting it? आप समझ रहे हो? You are getting it? क्या आप समझ See, रहे हो? before Adam and Eve, जब आदम और हवा उनके आने से पहले they sinned. उन्होंने पाप किया। What God said, the day you will eat, you will die. परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन आप मर जाओगे। See, death is very easy for us to understand. हमारे लिए आसान है ये समझना कि मृत्यु क्या होती है, But for Adam and Eve, बट आदम और हवा के लिए no one died before them. उनके पहले और उनके सामने कोई भी मरा नहीं था। Can you just imagine? आप सोच सकते हो? God is saying, the day you will eat, you will die. परमेश्वर कह रहा है उन्हें कि जब भी तो फल खाओगे आप मर जाओगे। They might be wondering, what is death? वो सोच रहे होगे कि मृत्यु है क्या। See, I understand that because I have seen people passing away. मैं समझ पाता हूँ मृत्यु क्या है, क्योंकि मैंने लोगों को मरते हुए But देखा they है, have not sinned. पर आदम और हवा ने नहीं देखा। You all with me? क्या आप समझ रहे हो? You all with me? आप मेरे साथ So हो? Adam and Eve were standing, आदम और हवा जब रुके हुए थे, and God says, the day you will eat, you will surely die. परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तुम वो फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। It means इसका अर्थ है death was there before the sin. कि मृत्यु पहले ही आदम और हवा के वहां पर मौजूद थी। Death was there before the sin. मृत्यु थी वो आदम और हवा के पहले थी। Just even before Adam and Eve sinned, death already existed. इससे पहले कि आदम और हवा पाप करते, मृत्यु उनके पहले ही वहां पर था। But death had no power. पर मृत्यु के पास कोई शक्ति नहीं थी उस वक्त। Death was there, मृत्यु वहां पर था, but had no power. पर उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। The day they ate, जिस टाइम पे उन्होंने वो खाया, sin empowered the death. वो पाप ने मृत्यु को शक्ति दी। So when they ate, जब भी उन्होंने खाया, the fruit sin came. जो फल था वो पाप आया। That death did not come because of Adam and Eve,
मृत्यु आदम और हवा के वजह से नहीं आया, Death came because of sin. मृत्यु आया पाप के कारण। Sin brought death. पाप ने मृत्यु को लाया। So death was there, मृत्यु वहां पर थी, but no power. पर उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। Death had no power. मृत्यु के पास कोई शक्ति When नहीं sin थी। came, जब पाप आया, it empowered death. उसने मृत्यु को शक्ति You all दी। with me? मेरे साथ हो आप? You all with me? क्या मेरे साथ So हो why आप? did Jesus came? तो यीशु मसीह क्यों आया? Jesus came to put the death to death. यीशु मसीह आया ताकि वो मृत्यु को मृत्यु दे सके। What he is saying? वो क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? मृत्यु को मरण देने के लिए. टू कॉज डेथ टू डेथ। You are getting it? So wages of sin is death, जो पाप का वेजेस है वो मरण है, but gift of God is eternal life. पर परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो अनंत जीवन है। So when Jesus came, जब यीशु मसीह when आए, he died, जब यीशु मसीह मरे, what happened? तब क्या हुआ? Bible says, "Oh death, where is your sting?" तब यीशु मसीह ने कहा था मृत्यु को कि तेरी डंक का किधर है? Because there is no sin. क्योंकि पाप है ही नहीं He अभी। paid full for the sin. यीशु मसीह ने पाप की जितनी भी वेजेस थी वो सब भर Now दी। there is no sin. अभी कोई पाप नहीं है, There is no death. कोई मृत्यु नहीं है। Nothing. What? I'm not saying that you will not die, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी मरोगे नहीं। but what I am saying, मैं क्या कहना चाहता हूँ the lie of the enemy will say, कि शत्रु का जो झूठ है वो ये कहता है because of cancer you will die. कि कैंसर के वजह से आपकी मृत्यु हो That will जाएगी। not happen. ये कभी नहीं होगा। Enemy will say, शत्रु ये कहेगा because of accident you will die, कि एक्सीडेंट के कारण आपकी but मृत्यु that होगी, will not happen. पर वो कभी नहीं होगी। Enemy will say, because of curse and demonic attack you will die. शत्रु ये कहेगा कि श्राप के कारण या इविल स्पिरिट्स के कारण आपकी मृत्यु होगी। That will not happen. ये कभी नहीं होगा, Because that death have no power over your life. क्योंकि मृत्यु के पास अभी आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। Death came because of sin, मृत्यु आई पाप के कारण, and Jesus paid full payment for the sin. और यीशु मसीह ने पाप का जितना भी पेमेंट था वो फुल कर He लिया। judged the sin on the cross. यीशु मसीह ने पाप का न्याय किया He क्रूस became पर, sin वो खुद पाप बना so that we can live. ताकि हम जीवित रह And सकें। because of that, we don't. Death has no power over our life. और इसी कारण मृत्यु की कोई भी शक्ति नहीं है हमारे जीवन Because पर। of that, death cannot rule over our life. इसी कारण से मृत्यु हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। It is the lie of enemy that says because of sickness you will die. ये एक झूठ है शत्रु का जो कहता है कि आप मरने वाले हो। You will live and you will have full age. आप जियोगे और आपकी पूरी आयु तक जियोगे। Death will not make you sleep, मृत्यु आपको मृत्यु नहीं देगी, but you will sleep by just giving your spirit to the Lord. आप परमेश्वर में सो जाओगे, आप मरोगे नहीं। You will not die because of sickness, आप किसी बीमारी के कारण नहीं मरोगे, because that sickness has no power to cause you death. क्योंकि वो बीमारी में शक्ति ही नहीं है कि आपको मृत्यु दे सके। You are understanding? आप समझ रहे हो? So death cannot touch you until you reach your full age. मृत्यु आपको छू नहीं सकती जब तक आपकी आयु इस धरती पे पूरी ना हो जाए, Because Bible says sin will not dominate you. क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि पाप आप पे राज्य नहीं करेगा। If sin cannot dominate you, अगर पाप आप पे राज्य नहीं कर सकता death cannot dominate you. तो मृत्यु भी नहीं कर सकती। Listen this carefully. ये सुनिए, There were fiery, many serpents were released. उस वक्त मूसा के वक्त काफी सारे सांप आए थे वहां पर। So when Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया, because of sin, पाप के कारण like those many serpents, वो सांप के जैसे ही many problem came in mankind. बहुत बहुत सारी विपत्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन में आ गई। Because of sin, पाप के कारण sickness came, सिकनेस आया, poverty came, गरीबी आई, anxiety came, एंजाइटी आया, many curse came, बहुत सारे श्राप आए, many different things came. बहुत सारी अलग अलग विपत्तियां आई। In the Old Testament, they made sacrifice after sacrifice. पुराने नियम में काफी सारे बलिदान दिए गए एक के बाद, But finally the time came. पर एक वक्त आया God sent his son. कि परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को भेजा, So that whatever was troubling you,
तो जो कोई चीज आपको परेशान कर रही थी, he judged it on the cross. उस चीज का न्याय किया गया क्रूस पर। As in the time of Moses, he lifted up the serpent. जैसे मूसा के वक्त पे सांप को ऊंचा उठाया गया People lived, और लोगों जिंदा हो गए, they received healing. उन्होंने चंगाई को पाया। Same when God sent his son. वैसे ही जब यीशु मसीह आए धरती पे, He lifted up his son. परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को ऊंचा उठाया And all the sickness of this earth. और जितनी भी विपत्ति बीमारी थी इस धरती के And ऊपर, millions problem came. और इतनी सारी मिलियन जो प्रॉब्लम्स थी धरती Because पर of sin पाप के कारण, came upon Jesus. वो सारी चीजें यीशु मसीह के ऊपर आ And he गई judged it. और यीशु मसीह के ऊपर उस चीजों का न्याय किया He गया। paid the price. यीशु मसीह ने उस चीज का प्राइस पे किया। So what all Jesus judged it? तो यीशु मसीह ने क्रूस पर किन चीजों का न्याय किया? First, पहली बात, sin. पाप। Sin. पाप। Let's open Romans 7:15. आइए रोमियो की किताब 7वां अध्याय 15 वचन खोलें। First thing Jesus judged is sin. पहली चीज जो यीशु मसीह ने जिस चीज का न्याय किया वो है पाप, So that sin will not dominate you. ताकि पाप आपके ऊपर राज्य नहीं करे। Can somebody read it? और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वह करता हूँ। What Paul is saying? अपोस्टल पॉल क्या कह रहे हैं? What I want, जो मुझे चाहिए I don't do it. मैं वो नहीं कर पा But रहा हूँ, what I don't want, जो मुझे नहीं करना I do it. मैं वही चीज करता हूँ। Yeah. और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। Wait. What is saying? वचन क्या कह रहा है? Now then it is no more that I do it, but sin that dwells in me. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। Why he is saying that I'm not able to do what I want to do, but I am doing what I don't want to do. अपोस्टल पॉल ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे जो करना है मैं नहीं कर पा रहा हूँ और जो मुझे नहीं करना मैं वो कर रहा हूँ? It's because of sin which dwells in him. वो इस कारण है क्योंकि पाप उनके अंदर बसा हुआ है। Let's open verse 20. आइए 20 वचन खोले। Why he is doing? Because of sin. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाप उनके अंदर है। Verse 20. परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। See, the reason why people do what they don't want to do, मनुष्य जो बातें या चीजें करते हैं वो इस कारण करते हैं। and the reason why people cannot do what they want to do जो लोग हैं वो ये इस कारण नहीं कर पाते is because of the sin which lives in them. क्योंकि पाप उनके अंदर बसा हुआ है। You ask any alcoholic, आप किसी भी दारू पीने वाले व्यक्ति को he don't पूछिए, want to drink, उन्हें दारू नहीं पीना होता but there अंदर is से, something within him पर उनके अंदर कुछ होता है is calling him to drink again and जो again. उन्हें मजबूर करता है वो पीने के लिए, That is sin. जो है पाप। That sin brought the addiction. वो पाप है जो एडिक्शन को उनके जीवन में लाया। So let's open verse 22, आइए 21. आइए 21 वचन को खोलिए। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। So what Paul is saying, तो अपोस्टल पॉल क्या कह रहे हैं sin is troubling him. कि पाप उन्हें परेशान कर रहा है। Because of sin, पाप के कारण he is doing what he should not do. वो चीजें कर रहे जो वो नहीं करना चाहते And हैं he is not able to do what he should do. और वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। And this apostle, if you read in the context, अगर वो पूरा चैप्टर अगर आप पढ़े तो Apostle Paul is not talking about his life after the salvation. वो उस जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे जब उन्होंने उद्धार को पाया। It was before his salvation. वो उस जीवन की बात करे जो उनका उद्धार के पहले था। Before he encountered Jesus. इससे पहले कि वो यीशु मसीह के साथ उनका मेल मिलाप हुआ। In this passage, इस पैसेज में he's talking about his past life. अपोस्टल पॉल अपने पुराने जीवन के बारे में Not बात the कर रहे हैं, present. अभी के जीवन के लिए Let's नहीं। open verse 25. आइए 25 वचन खोलिए। But I thank God through Jesus Christ. पर मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. निदान मैं अपने बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का
परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता The हूँ। reason why Jesus died on the cross, यीशु मसीह इस कारण मरे क्रूस पर, it because of serpent of sin, which operates in mind. वो सांप है पाप का जो हमारे बुद्धि में काम करता है। That's something, that sin is something that makes you do what you should not do, and that makes you do what you cannot do. उस पाप के कारण जो आपसे वो करवाता है जो आप नहीं करना चाहते हो, And that's what Paul was saying. और वही चीज अपोस्टल पॉल कह रहे हैं। And that sin, और वो पाप, that the thing which you are doing what you should not do, जो चीज आप करें जो आपको नहीं करना चाहिए, Jesus took it यीशु मसीह ने उसे लिया and judged it on the cross. और उसका न्याय क्रूस पर किया। That sin. वो पाप, So when you sin, जब आप पाप करते हो death comes. मृत्यु आती है, But just imagine, पर आप ये सोचिए Jesus did not sin, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, but he became sin. पर वो पाप बन गया। Because of that sin, वो पाप के कारण, you were doing there was wrong action through your life. उस पाप के कारण गलत चीजें हो रही थी आपके जीवन के But द्वारा, all those weaknesses now, पर वो सारी कमजोरियां Jesus took it on the cross, यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर ले लिया, so that through him ताकि यीशु मसीह के you द्वारा can live perfect life. आप अनंत और परफेक्ट जीवन So को when जी you सके। looked up to Jesus, जब आप यीशु मसीह को देखते हो क्रूस पर, that now you can walk perfect. उसके कारण आप इस जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति के जैसे चल सकते So हो। when he became sin, जब यीशु मसीह पाप बना, that everything what sin brought, जो कोई चीज पाप ने लाया, he judged it. उस चीज को यीशु मसीह ने न्याय किया क्रूस पर। Every problem you go through, हर एक विपत्ति जो आपके जीवन में आती है, sin brought it, जो पाप ने लाई, and Jesus God judged it on the cross. यीशु मसीह ने उसे लिया और क्रूस पर उसका न्याय किया। So the day you receive Jesus in your life, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, the sin which caused problem जिस पाप ने इतनी सारी विपत्तियों को लाया, will not dominate you, वो आपके जीवन पर राज्य नहीं कर because सकता, Jesus judged it. क्योंकि यीशु मसीह ने उस चीज का न्याय Sin किया। in your mind, जो पाप आपके दिमाग में है, sin in your wrong actions, जो पाप आपके दिन व दिन एक्शंस में है, he judged it. उस चीज का न्याय किया And यीशु how you मसीह can ने। live overcome life? आप ऐसे कैसे एक विजय का जीवन जी सकते Just by हैं? looking up to Jesus, सिर्फ यीशु मसीह को देखने के just कारण। like beholding him. जब आप यीशु मसीह को निहारते The हो, people in Moses' time, जो लोग थे मूसा के वक्त they में, receive healing उन्होंने चंगाई को by पाया looking at it. जब उन्होंने वो सांप के खंभे को But देखा। in New Testament, अभी नए करार में we look up to Jesus. हम यीशु मसीह को देखते We हैं overcome sin. और हम पाप पे विजय को पाते हैं। Second thing, what Jesus just did on the cross दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका न्याय is किया, sickness. वो है बीमारी। 1 Peter 2:24 says, पहला पतरस 2 का 24 कहता He है, himself bore our sicknesses in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripe you are healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। He bore all the sicknesses. उन्होंने सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। First thing, पहली बात sin, पाप, sickness. और उसके बाद बीमारी। So you should not have sickness. तो आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, Because every sickness, क्योंकि हर बीमारी, you name the disease. कोई भी बीमारी का नाम लीजिए, Any sickness which are present and which will come in the future. जो बीमारी अभी है और जो फ्यूचर में भी आएगी, God took it वो सारी बीमारियों को and लिया, judged it on the cross. उसका न्याय किया क्रूस पर। So you should not have sickness. तो आपको बीमारी नहीं All होनी types चाहिए। of disease, कैसी भी बीमारी हो, God put it on Jesus वो बीमारी को परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया and judged it. और उसका न्याय किया। Third, तीसरी बात, poverty. गरीबी। Let's open 2 Corinthians 8:9. आइए दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 खोले। It says, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उस कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। See, every financial problem हर एक जो गरीबी है, which troubles your family, जो आपको परेशान करती your है, personal life, आपको पर्सनली or अफेक्ट your करती future, या आपके भविष्य को, God took it
परमेश्वर ने उसे लिया, judged it on the cross. उसका न्याय किया क्रूस पर। You all with me? आप हमारे साथ हो? So you should not have poverty. तो आपको गरीबी नहीं होनी चाहिए आपके To जीवन be में। wealthy and prosperous is your birthright. आपके लिए ये दिया गया है कि आप धनी हो और उन्नति करो, Because on the cross, क्योंकि क्रूस पर he became poor. यीशु मसीह कंगाल बन It गया। says, for your sake, he became poor. वचन कहता है कि आपके कारण वो कंगाल बन All गया। the crisis, जितनी भी विपत्तियां होती है, any crisis which will come because of pandemic, जो भी विपत्ति एक पैंडेमिक के कारण it आएगी, might be in future, चाहे वो भविष्य में हो, every crisis he took वो सारी विपत्तियों को and लिया judged it on the cross. और उसका क्रूस पर न्याय किया। You all with me? आप मेरे साथ हो? To become prosperous and wealthy is your birthright. उन्नति करने के लिए और धनी बनने के लिए आप चुने गए हो। Every lack you have in your life, जिस भी चीज की कमी घटी आपके जीवन में है, Jesus came personally, took it and judged it. यीशु मसीह आया, आपके जीवन से लिया और उसका न्याय किया क्रूस पर। Fourth thing he judged. चौथी चीज जो यीशु मसीह ने This न्याय is, किया, this is my focus, ये मेरा सरमन का फोकस है, the curse. श्राप। What he judged? यीशु मसीह ने किस चीज का न्याय He किया? judged the curse. यीशु मसीह ने श्राप का न्याय किया। Just we are gonna spend more time on this. हम वक्त बिताएंगे श्राप ये टॉपिक के ऊपर। Let's open Galatians 3:13. आइए गलतियों 3:13 को खोले। Curse is everyone who hangs on a tree. वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो काट के ऊपर चढ़ाया जाता है। See, he did not take our curse, यीशु मसीह ने हम श्राप नहीं लिया, but he became curse. वो श्राप बन गया। Can you just imagine? आप सोच सकते हो, On the cross, he became poor. क्रूस के ऊपर वो गरीब बन गया। He took our poverty, ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने गरीबी को सिर्फ but अपने he हाथ में himself लिया, became. वो खुद बन गया गरीब। Here it says, curse is everyone who hangs on the tree. वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो पेड़ पे So लटकाया जाता Jesus है। did not take our curses, यीशु मसीह ने सिर्फ श्राप को लिया नहीं, he himself became curse वो श्राप बन गया for you and me. आपके और मेरे लिए। There are certain things that we go through life we think is natural to have. ऐसी कई बातें हैं जो हम हमारे रोज के जीवन में जाते हैं, जो हमें लगता है काफी साधारण है, नॉर्मल है हर Like मनुष्य के लिए। Viral fever, जैसे फीवर हो गया, cough, खांसी हो गई। anything you think it's normal. Poverty, sometimes lack is normal. हमें लगता है कि कमी घटी में जीना या फीवर होना, खांसी होना काफी आम बात है। Sometimes ups and down. कभी हमारे जीवन में ऊपर हम जाते, कभी नीचे। We say it's normal. हम बोलते कि ये तो काफी It's the साधारण बात season है, of life. ये जीवन में होता रहता But है, it's not true. पर ये सच नहीं है। Because all the down season, क्योंकि जो सारी बातें हमें नीचे लेकर every जाती है, season which is troubling you, जो भी चीज हमें परेशान करती है, Jesus took it यीशु मसीह ने उसे लिया and judged it on the और cross. उसका न्याय किया क्रूस के ऊपर। So I will explain this more. मैं ये चीज आपको समझाना Let's चाहता open हूँ। Deuteronomy 28, आइए व्यवस्था विवरण 28 खोले, 16 to 19. 16 से 19। So I will explain what is curse. मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि श्राप क्या है। Deuteronomy 28, 16 to 19. व्यवस्था विवरण 28 16 से See, 19। sometimes we think it's okay to go through the hard things. कभी कभी हम सोचते कि चलता है कठिन चीजों के द्वारा जाना, But word of God is not supporting it. वचन ऐसा नहीं कहता है। Word is very clear. वचन काफी स्पष्ट It कहता है। says Jesus leads you in triumph every time. वचन कहता है कि यीशु मसीह हमें विजय से विजय में ले चलता है। Not only on Sunday सिर्फ रविवार के दिन or नहीं, Wednesday या सिर्फ or बुधवार when के you दिन come to the नहीं, church. या तब नहीं जब आप कलीसिया में every आते day. हो, पर हर दिन Through Christ Jesus, यीशु मसीह के द्वारा He leads us in triumph. वो हमें विजय में ले चलता है। So it's not okay to have it just like we say some problem is natural to have it. तो हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अरे ये जो विपत्ति है वो तो साधारण ही तो Because होता रहता word है, of God is not supporting क्योंकि it. वचन ऐसा नहीं कहता। Let's open Deuteronomy 28 verse 16 to 19. Somebody help me with reading. अर्थात शापित है तू नगर में, शापित है तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। See, can you imagine? क्या आप सोच सकते The हो one who did not keep the commandment, कि जो कोई भी व्यवस्था के बातों को रखता नहीं था, it says, वचन curse कहता, shall- everywhere, wherever you look, you see the curse.
जो भी व्यवस्था की बातों को नहीं रखता था वो हर क्षेत्र में श्रापित था। Like every time you just see the failure. आप वो व्यक्ति कभी भी किधर भी देखता तो वो सिर्फ फेलियर को Like देखता। many people have this in their life also. They go through this season. काफी सारे लोग हैं जो काफी सारे संघर्षों से जाते No हैं, matter what they do, चाहे वो कुछ भी करें, no matter how much they serve, कितना भी वो लोग परिश्रम how करें, much they invest, कितना भी वो इन्वेस्ट they करें, see failure. वो हमेशा देखते कि वो विपत्ति में जा रहे हैं। But good news is, पर एक अच्छी न्यूज ये है, all this failure, ये सारी विपत्तियां Jesus took it on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली। He paid the price उस चीज का दाम चुकाया so that यीशु we मसीह ने, as a child of God ताकि हम परमेश्वर के जो पुत्र हैं see victory wherever we'll go. हम विजय को देख सके हर क्षेत्र See में, blessing in when we go out and when we come in. ताकि हम आशीष को देख सके जब हम बाहर जाते हैं और जब हम अंदर आते When we हैं। give, we see blessing. जब हम देते हैं तो आशीष को देखते When we हैं, take, we see blessing. जब हम लेते हैं तो आशीष देखते हैं। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no matter what we do, we see the blessing. किसी भी दिन में हफ्ते को हम सिर्फ आशीषों को ही देखते हैं, Because this curse, क्योंकि ये जो श्राप था Jesus took on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। So it is not natural to just sometimes failure is fine, you learn it. तो ये एक साधारण बात नहीं है विपत्तियों को और हार को अपने जीवन में देखना। We don't learn by the experience. हम ये सारे विपत्तियों से परेशानियों से सीखते नहीं हैं। Bible says the word of God is able to teach you and build you. वचन कहता है कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है और बढ़ाता है। Why people learn from the experience? क्यों ऐसा होता है कि काफी सारे लोग कठिन बातों से Because कुछ सीखते हैं? They don't understand from the word of God. क्योंकि वो वचन से कुछ समझते नहीं हैं। And when they don't give the importance to the word of God, और जब वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते the हैं, experience of the life will teach them. उनके जीवन की विपत्तियां उन्हें But सिखाती when हैं। they have the word of God, बट अगर उनके पास वचन the है, revelation of Christ, प्रगटीकरण है यीशु he मसीह का, goes out, he's come in, he do this, he see the blessing of the Lord. वो व्यक्ति चाहे किधर भी जाए, बाहर जाए या अंदर जाए, He वो see सिर्फ the आशीषों को victory. देखता है, वो सिर्फ विजय को देखता है। So good news is that अच्छी न्यूज ये है, this curse Jesus took it on the cross. ये जो श्राप लिखे हुए हैं वो यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिए। It means you don't need to be failure. इसका मतलब है हमें अपने जीवन में हार देखने की जरूरत नहीं Only है। success, success, success. सिर्फ उन्नति 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 So हमारे लिए let me है। tell you, तो मैं कहना चाहता हूँ, because Jesus bore everything on the cross, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया because क्रूस Jesus पर, paid the price, क्योंकि यीशु मसीह ने दाम you will चुकाया, have success. आप उन्नति पाओगे। In India, in Faridabad, you will have success. इंडिया में फरीदाबाद जगह में आप उन्नति पाओगे। In America, in Australia, any state, any nation, you will have success. आप कहाँ पर भी जाओ, यूएसए में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, आप उन्नति Because पाओगे। that curse, Jesus took it on the cross. क्योंकि श्राप यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। You all with me? आप मेरे साथ हो? You all with me? आप मेरे साथ हो? Let's go ahead, verse 20. आइए आगे जाइए और हम 20वां वचन पढ़ेंगे। It says, the Lord will send you cursing, confusion, and rebuke all that you set your hand to do. फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। See, it says about cursing and vexation. वचन कहता है श्राप के बारे में। What is that? वो क्या है? Confusion, कंफ्यूजन जो हमारे Doubt. दिमाग में, डाउट्स, depression. See, निराशा। some people, if you see, अगर आप किन लोगों को you देखें give तो small work also. उनको छोटा सा भी काम They दो, will see confused. They will have confusion. वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, They will be they'll be depressed. वो निराश हो जाते हैं, They'll have doubt and fear. वो डाउटफुल हो जाते हैं और उन्हें डर लगने लगता है। Even in small work, एक छोटे से काम में भी their brain will not work. उनका दिमाग काम नहीं करता, They will feel pressurized. वो प्रेशर को अनुभव करते हैं। You all with me? Have you seen these people? आपने ऐसे लोगों को देखा है? But good news is that पर एक गुड न्यूज ये है, all this, ये सारी चीजें, your confusion, आपकी your कंफ्यूजन, doubt, आपका डाउट, depression, आपकी निराशा, Jesus bore on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस So पर उसे when ले you look लिया। up to Jesus, जब यीशु मसीह को आप the देखते हो, confidence आपके अंदर कॉन्फिडेंस clarity, आता, क्लैरिटी आता, faith विश्वास flows. आपके जीवन में फ्लो So it करता is है। not normal to have confusion and doubt. ये एक साधारण बात नहीं कि कंफ्यूजन में रहना और आप डाउट में In रहना। the time of our need, जब वक्त आता है हमारी जरूरत just का, look up to Jesus, सिर्फ यीशु मसीह को देखिए, because that curse क्योंकि वो श्राप is paid on the cross.
उसका कीमत चुकाया गया है Let- क्रूस पर। Let's go to the verse 21. आइए 21 वचन की ओर बढ़े। See what it says. The Lord will make the plague cling to you until he has consumed you from the land which you are going to possess. और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि में अधिकार होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत न होगा। The NKJV translation, plague will cling to you. एनकेजेवी जो ट्रांसलेशन है वो कहता है कि जो विपत्ति है वो तुझसे चिपके रहेगी। It means stubborn sicknesses. इसका मतलब जो बीमारियां जो बहुत कठोर होती है, There are some sicknesses. ऐसी बीमारियां होती है। Doctor says डॉक्टर कहते you हैं have to take medication until you die. ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए डॉक्टर कहते कि This जीवन के sickness अंत will तक, be with you all the days of your life. डॉक्टर कहते कि ये बीमारी तेरे जीवन के अंत तक बनी रहेगी। It's not sickness that comes and goes, but it stays. वो ऐसी बीमारी नहीं है जो आती जाती रहती है पर जो रुक जाती है जीवन में। It's like, so it might be diabetes, ऐसी बीमारी जो डायबिटीज है, BP, बीपी, anything. कोई भी बीमारी हो It's सकती like है। that is cling to unto you. ऐसी बीमारियां जो चिपके रहती है हमारे जीवन में। But good news is that पर अच्छी न्यूज ये है that also Jesus took it on the cross. वो बीमारी को भी यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। Nothing, only the Holy Spirit will cling unto you, not the sickness. सिर्फ पवित्र आत्मा हमें जकड़े रहेगा, बीमारी नहीं। When doctor says that you have to go through this all the days of your life, जब डॉक्टर कहते कि पूरा जीवन तुझे बीमार रहना पड़ेगा, that is the lie of enemy. वो एक झूठ है शत्रु का। You need to stand on that your place आपको उस जगह पे खड़े रहना पड़ेगा and you have to rebuke that sickness और आपको उस बीमारी को धमकाना and have पड़ेगा to say that sickness, और बीमारी को कहना पड़ेगा, you sickness, तू बीमारी, Jesus judged you on the cross. तेरा न्याय किया यीशु मसीह ने क्रूस Jesus पर। paid the price. यीशु मसीह ने तेरे लिए दाम चुकाया So है। we should not have sickness that we will have lifetime. ऐसी कोई बीमारी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए जो अंत तक बने We रहेगी। have to look up to Jesus हमें यीशु मसीह को देखना who है lifted up for us. जो ऊंचा उठाया गया हमारे कारण। As people in the Old Testament, people can receive healing अगर पुराने नियम में लोग चंगाई पा by सकते looking हैं at the serpent. सिर्फ सांप को देखे हुए, Just imagine in New Testament by looking at Jesus how much healthy we should live. तो आप सोचिए नए करार में जब हम यीशु मसीह को देखते तो हमारा जीवन कैसे होना Those चाहिए। time the blood was of the lamb, उस वक्त जो खून था, जो लहू था, वो बकरियों का था। but when Jesus judged it, जब यीशु मसीह ने न्याय किया, that was the blood of himself. वो जो लहू था वो यीशु मसीह का था। That blood was, there was no sin in him. उस लहू में कोई पाप नहीं था। So in new creation, अभी जब हम नए हो चुके we हैं, need to stand at our place. हमें अपनी जगह पर रुकना That होगा no sickness, कि कोई भी बीमारी, no BP, कोई बीपी, no diabetes, कोई डायबिटीज, nothing. कुछ भी नहीं। People say asthma, लोग बोलते हैं अस्थमा है मुझे, leg pain, पैरों में दर्द है, nothing will cling unto you. ये चीजें हमें जकड़े हुए When नहीं you रहेगी। stand जब आप रुकते हैं, and declare, आप जब घोषणा करते हो, Jesus judged it on the cross, यीशु मसीह ने उस चीजों का न्याय किया, you will see healing manifest. आप देखोगे कि चंगाई आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती The है। good news is that Jesus judged it on the cross. गुड न्यूज ये है, ये बीमारियों का न्याय किया यीशु मसीह ने क्रूस पर। Let's open verse 22. आइए 22 वचन खोले। It says, the Lord will strike you with consumption, with fever, with inflammation, with severe burning fever, with sword, with scorching, with the mildew. They shall pursue until you perish. वचन कहता है, यहोवा ने कहा, यहोवा तुझको श्रय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार से और जुलूस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश ना हो It जाए। says, will strike you with consumption. वचन कहता है कि वो बीमारी से मारेंगे। What is consumption? It's like some people, have you seen some people, they are abnormally thin or weak? क्या आपने उन लोगों को देखा है जो काफी पतले होते पर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा? They're like very thin. No matter how much they eat, they remain like that. ऐसे लोग जो कितना भी खाना खाए पर काफी नॉर्मल लोगों से भी बहुत पतले होते हैं, That is a consumption. वो ये बीमारी है। And Jesus took that also on the cross. यीशु मसीह ने उससे भी क्रूस पर ले The लिया। good news is that गुड न्यूज ये है we should not have
and we will not have. गुड न्यूज ये है कि हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। Jesus bore it on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर उन चीजों को It उठाया। says with striking with consumption with fever. वचन कहता है कि फीवर से, It means God does not want you to have fever also. इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में फीवर भी ना हो। Can fever can touch Jesus? क्या आप सोच सकते हैं Can फीवर Jesus have fever? यीशु मसीह को फीवर हो सकता है क्या? So when he lives in us, अगर वो हमारे अंदर है no fever. तो फीवर नहीं आ So when सकता। fever tries to come in your body, तो जब फीवर आपके बॉडी में you आता have to है, stand आपको रुकना है and rebuke that fever. और उसको रिब्यूक करना है And you have to tell that fever, और उस फीवर को कहना on the है, cross, क्रूस के ऊपर Jesus judged you. यीशु मसीह ने तेरा न्याय किया। Even fever. जो फीवर है, Some people say, now climate is changing, that's why I have fever. कुछ लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया इसलिए फीवर आ गया। You are not of your own. आप ये समझिए कि आप खुद के नहीं हो, You have his body. आपके पास यीशु मसीह का And no शरीर है fever can enter into his body. और कोई फीवर आपके अंदर नहीं No आ matter सकता, what is climate. चाहे क्लाइमेट कैसा भी हो। Our God is the God who sleeps in like wind in the boat. हमारा परमेश्वर ऐसा है जो नाव में भी, हवा के बीच में भी सो जाता है। What is this fever? तो फीवर उसके लिए क्या है? Next it says inflammation. और वचन कहता है जलन। What is inflammation? जलन क्या है? It's swelling in the body. वो जो स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, That is also Jesus cursed on the cross. उस चीज को भी यीशु मसीह ने श्राप किया क्रूस के ऊपर। Sometimes now I'm old, my age, I'm 70 plus. I should थोड़ा तो कुछ होना चाहिए. हाँ, काफी लोग कहते हैं कि अरे मैं 70 का हो गया, कुछ तो बीमारी होनी चाहिए बॉडी में। My legs are like swelling. मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई If है, I do this, it's swelling. अगर मैं ये काम करूँ तो स्वेलिंग आ But जाता है। let me tell you good news. पर मैं गुड न्यूज बताता हूँ, Every swelling, हर स्वेलिंग before it could come in your body, इससे पहले कि आपके शरीर में Jesus आती, paid the price. यीशु मसीह ने उसका दाम That is चुकाया। your birthright. वो आपका जन्म का हक है। So when swelling, you feel that something is changing in your body, जब आप महसूस करते हैं कुछ तो बदल रहा है you बॉडी have to में, stand आपको रुकना है and rebuke. और उस बीमारी को धमकाना है And need to tell Jesus paid the price. और उसको बताना है यीशु मसीह ने The दाम curse चुकाया। of inflammation, जो स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में उस चीज की, Jesus paid the price. यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया। Next it says mildew. दूसरा वचन कहता है जलन। Mildew means bloodlessness. उसका अर्थ होता है जब शरीर में खून नहीं होता। Like some people they have anemia, जो बीमारी है एनीमिया, or some people their HP is always low. किन किन लोग हैं जिनका हेमोग्लोबिन कम होता है। But let me tell you the good news. पर मैं गुड न्यूज बताना चाहता हूँ, Jesus gave all whatever he could have यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया जो उसके so that पास you था, can have blood. ताकि आपके पास रक्त हो। This is your birthright. ये आपके जन्म का हक So है। when doctor says your HP is low, जब डॉक्टर आपको कहे कि आपका HB कम है, you have to go to your room आपको आपके कमरे में and जाना you है need to tell yourself और आपको खुद को कहना है, to that hemoglobin. वो हेमोग्लोबिन को कहना है, Jesus cursed you on the cross. यीशु मसीह ने तुझे श्राप किया क्रूस Jesus के paid the ऊपर। price. यीशु मसीह ने तेरे लिए दाम It said- चुकाया। Mildews, वचन कहता है जलन, every bloodlessness, जो रक्त जिसके बॉडी में नहीं होता, Jesus paid the price. यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया। Yeah, are you all with me? आप मेरे साथ हो? So this is good news for you. ये आपके लिए एक अच्छी That न्यूज है sickness will not have his place in your body. कि बीमारी आपके शरीर में जगह नहीं ले Verse सकती। 24. 24 वचन कहता है, यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूली बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो Just जाएगा। imagine the curse. It's so amazing. Like if she follows the law and I don't follow the law, the rain will fall on me and will not fall on her. वचन कहता है कि अगर मैं नियम को फॉलो करते हुए और वो नहीं करते हैं तो बारिश उन पर आएगी और मेरे पे नहीं The आएगी। dust, even she is my neighbor, the dust will come to me and not to her. अगर हम दोनों साथ में भी रहे तो जो धूल है वो मेरे ऊपर आए, उनके ऊपर आएगी और मेरे ऊपर नहीं आएगी। So it's possible the rain will only come to the people who keep the law. ऐसा संभव है कि जो लोग नियम शास्त्र को रखते हैं उनके ऊपर बारिश और धूल कभी ना आएगी। But good news is this, पर एक अच्छी न्यूज ये है, because what Jesus did यीशु मसीह ने जो किया will always have safety and protection.
उनके कारण हमारे जीवन में सुरक्षा बनी रहेगी। Jesus took this curse यीशु मसीह ने ये श्राप को and लिया, judged it on the cross. उसका न्याय किया क्रूस पर। So no matter where we go चाहे हम किधर भी जाए, or what we do, चाहे हम कुछ भी करें, we see the provision of the Lord. हम प्रभु के प्रोविजन को अपने जीवन That में we देखते will हैं। always have rain. हमारे जीवन में हमेशा बारिश The rain होगी। is not coming, falling on to the person who is cursed. बारिश उसके जीवन पे नहीं आती जिनके जीवन पर श्राप है, But because of Jesus, पर यीशु मसीह के कारण we have rain. हमारे जीवन के ऊपर बारिश We है, have safety. हमारे जीवन पर सुरक्षा है। He judged it on the cross. यीशु मसीह ने इन सारी बातों का So क्रूस let पर me न्याय tell you, किया। no matter what is troubling you, चाहे कोई भी चीज आपको क्यों ना परेशान कर रही हो, let's just stand. आइए हम खड़े हो जाएं। You need to tell yourself आपको खुद को बताना पड़ेगा that Jesus paid the price. कि यीशु मसीह ने उन सारी बातों का दाम चुकाया है। Healthy life is my birthright. एक हेल्दी जीवन मेरे जन्म का हक है। I don't trust in the medical report. मैं मेडिकल रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करता I हूँ, trust unto Jesus. मैं यीशु मसीह पे भरोसा करता I हूँ, trust in living God. मैं जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता I हूँ, trust in Jesus who paid the price for me. मैं यीशु मसीह पे भरोसा करता हूँ जिसने हर दाम को चुकाया। Come on, begin to pray for आइए yourself. प्रार्थना करना शुरू करिए अपने आप के लिए।